What's up everyone? Welcome to another episode of Mars Technical. How are you all doing today? I really hope you are doing fantastic. But today it's good news. Yes, Microsoft has released the Windows 11. Now this was something which no one saw coming in. Actually, there were some reports that Microsoft is developing a Windows 10X version, more of an advanced version of the Windows 10. Because when Windows 10 was released, they said this will be the last version of Windows. लेकिन पता नहीं बाद में उनके मन में क्या आया, उन्होंने सोचा कि नहीं यार, we really have to compete with the competition and competition being Mac OS. जिस तरीके से Mac OS ने खुद को रिवैम्प किया है साल दर साल, उस वजह से Microsoft को भी सोचना पड़ा कि we really need to get something for all our Windows users. So what they have done is Windows 11. Windows 11 Windows 10 से काफ़ी ज़्यादा एक अपग्रेड माना जाता है and especially if you're switching over from Windows 7, definitely this will be a big upgrade. Now why I'm saying Windows 7? Because आज की तारीख में भी despite of Windows 10, many people still prefer to use Windows 7 because of the ease of operability and more importantly being very stable. Windows 10 की अगर मैं बात करूं तो it was a very good operating system. उसके अंदर कुछ इस तरीके से पूरी खामियां नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो बहुत ही ज़्यादा flawless भी नहीं था. If we go back in time, if we see Windows XP was fantastic. बहुत ही stable, बहुत ही बढ़िया, उस जैसी कोई बात नहीं. Then came in Windows 7. Windows 7 was more like, okay, still stable, but not too stable. You can understand what I'm trying to say. Windows 8 की बात करें, that was a disaster. Disaster मतलब अलग ही हो गया था हिसाब किताब. They really didn't know what they were doing because it was unfinished. Frankly speaking, it looked so unfinished कि Windows 8 was never something that anyone looked forward to. Then came in Windows 10. Windows 10 was something जो गलतियां उन्होंने Windows 8 से सीखी थी, वो सारी की सारी सही करके इन लोगों ने Windows 10 में लेके आए. And Windows 10 has been going on for a couple of years now. Everything is smooth and fine. तो why Windows 11? Windows 11 की अगर हम बनावट की बात करें, इट रिमाइंड्स अस ऑफ दोस डेज कि जब Windows XP के बाद Windows Vista आया था. Vista में उन्होंने ग्लास, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा एम्फोसाइज किया था. और बिल्कुल इस वक्त के प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर भी आपको देखने मिलेगा, एवरीथिंग हैज बीन फोकस्ड ऑन दोज ब्यूटीफुल ग्लास इनलेज, रिफ्लेक्शंस, ओपेसिटी, ट्रांसलूसेंसनेस एंड गॉड नोज व्हाट. इट्स ऑल ग्राफिक इंटेंसिव, बट इट डज लुक वेरी ब्यूटीफुल. More importantly, the whole mantra of Windows 11 is being as minimalistic as possible. अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि obviously the design of a Windows desktop or a laptop hardware is kind of boring. They come basically in black, majority in black. यही अगर हम बात करें Mac की, तो जो iMac नया वाला आया है M1 चिपसेट के साथ, how beautiful it is, how colorful it is. तो कहीं ना कहीं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के अगर उसमें डाल दिया जाए हार्डवेयर के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं चीज बैठते हुए नजर आएगी. यस, दिस OS Windows 11 इज वेरी कलरफुल. इन्होंने बहुत कोशिश की है एक यूथ अपील देने के लिए. बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स, पेस्टल्स, ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है. एंड समथिंग दैट वी ऑल शुड अंडरस्टैंड इज स्टार्ट मेन्यू. इतने सालों की आदत विंडोज 95 से जब से हम देख रहे हैं, विंडोज एनी जितने भी थे, स्टार्ट मेन्यू हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम में हुआ करता था. ये ऑप्शन इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन दे आर एम्फसाइजिंग दैट विंडोज 11 इज योर सेंटर, इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ. तो स्टार्ट मेन्यू को भी बिल्कुल बराबर टास्क बार के सेंटर में दे दिया गया है, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू खुलता है जिसके अंदर आपको एवरीथिंग यू कैन चेक इट आउट. द फाइंडर सिमिलर टू दैट ऑफ द Mac OS आपको इसमें देखने मिलता है. यू कैन सर्च फॉर ऑल द एप्स दैट आर इंस्टॉल्ड, search for the apps which are available on the Windows Store. बहुत कुछ मौजूद है. Fluidity की बात करें, it is fluid, it is much more smoother as compared to Windows 10. It loads much faster, has a lot of speed enhancements. Despite being graphic intensive, still it is much faster on the system. एक सबसे बड़ा हेडलाइन फिगर Windows 11 में ये दिया गया था कि आप इसके ऊपर Android apps चला सकते हैं. But there's a catch, there's a big catch which you need to understand first. Windows has not collaborated with Google Play Store. आपको इस तरीके से नहीं होगा कि आप बाकायदा जैसे अपने फ़ोन में एप्स इंस्टॉल करते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं. There's a way out, okay? There's a relay. All these applications, these so-called Android applications, are relayed through the Amazon Play Store. जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास Amazon का ID है, if you are logged into your Amazon account, what will happen is जो Windows का स्टोर है, जो Windows की ऐप स्टोर है, वहाँ पे आपको Amazon की ऐप डाउनलोड करनी है.
वहां पर साइन इन करना है, फिर आपको दिखाई देगा उसके अंदर जितने भी एंड्रॉयड ऐप्स उस स्टोर के ऊपर मौजूद हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड करके सीमलेसली अपने कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हैं। This is the basic integration of how these things are working in tandem together. In the presentation, it was clearly shown how you can basically जहाँ पे आपने इस चीज को छोड़ा है वहां से आप पिकअप कर सकते हो। This is very operator friendly when it comes to multiple display setups. बहुत सारे लोगों को आदत होती है मल्टीपल डिस्प्लेस कनेक्ट करने की। मोर इंपॉर्टेंटली बहुत सारे लोगों को ये भी आदत होती है कि इफ दे कांट अफोर्ड अ मल्टीपल डिस्प्ले, एक ही डिस्प्ले के ऊपर दे ओपन मल्टीपल एप्स और टैब्स। यहाँ पे आप जैसे ही एक ऐप से ज़्यादा दूसरी ऐप खोलते हैं, आपको ऑप्शन आ जाता है अपने विंडोज़ को रीसाइज करने के लिए। तो पहले की तरह आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रीसाइज इट मैन्युअली। विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन इजीली रीसाइज इट और अपने पूरी स्क्रीन को आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो वन थिंग कॉल्ड एज कलर कोडिंग। इसके अंदर आप देखेंगे तो एक तो डार्क मोड है, बहुत खूबसूरत है, और दूसरी चीज़ जो मिलेगी आपको अगर आप नॉर्मल मोड में हैं, जितने भी कलर्स हैं आपके, चाहे टास्क बार के कलर हो, आपका टास्क बार हो गया या आपके दूसरे मेन्यू बार्स हो गए, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड थीम के साथ कलर कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ये देखने में ओवरऑल एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लगता है। Now, सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर Windows 11 comes as a free upgrade to Windows 10 users. Now that is something fantastic. लेकिन कहीं ना कहीं, now don't quote me on this because I have seen certain confirmed reports online. ये सारा सोर्स जो है ये गूगल के थ्रू आ रहा है। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि this is not entirely true. अगर आपकी मशीन 3 साल से ज़्यादा की पुरानी है, उसके अंदर सर्टन प्रोसेसर्स नहीं लगे हुए या उस लेवल का प्रोसेसर नहीं लगा हुआ है, या आपके पास पुराना वो बिल्ड वर्जन नहीं है विंडोज 10 का, तो probably you will have to buy the Windows 11. It will not be available as a free over the air upgrade to you. But still, it is unconfirmed. I'm not sure about it. That's the reason there's this huge asterisk that is going on in the screen right now. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि अगर Windows 11 एक फ्री अपग्रेड के तौर पे आपको मिल रहा है। नॉर्मली देखा जाए तो जब भी हम मैक ओएस को अपडेट करते हैं, चाहे वो कोई भी वर्जन चेंज करता है, इट इज ऑलवेज फ्री। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो विंडोज ने भी इस बार वही चीज को अपनाया है। रादर देन पेइंग सम नंबर ऑफ डॉलर्स टू गेट अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको सारा का सारा वैसा का वैसा उसके ऊपर अपग्रेड होकर मिल जाता है। एंड इट इज अगेन बैक टेस्टेड फॉर इंटर ऑपरेटेबिलिटी। आपकी कोई एप्स या कोई प्रोग्राम्स आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विंडोज 10 के ऊपर, तो विंडोज 11 में भी बाय डिफॉल्ट चलने शुरू हो जाएंगे। बट ऑब्वियसली इनिशियली आई फील देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ बग्स, क्योंकि जब भी एक इंटर ऑपरेटेबिलिटी देखी गई है, इट इज नेवर सीमलेस। समवेयर डाउन द लाइन द प्रोग्राम डज क्रैश, फिर वो प्रोग्राम अपने अपडेट्स भेजता है ताकि वो विंडोज 11 से मैच कर सके। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली इट विल टेक सम टाइम सेटलिंग इन डाउन। शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आने वाले 6 महीने के पीरियड में एवरीथिंग शैल बी स्मूथ। सो द बिग क्वेश्चन इज, क्या आपको विंडोज 11 पे अपग्रेड करना चाहिए और शुड यू स्टिल स्टिक टू योर विंडोज 10? देखिए, ये टेक इंडस्ट्री है, इसमें हर 6 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा फेरबदल होता रहता है कि जिससे आपको लगता है कि यार मेरे पास लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मशीन, सॉफ्टवेयर, जो बोलो वो होना चाहिए। तो अगर आप उस कैटेगरी के हैं कि यार मेरे पास सबसे लेटेस्ट सामान होना चाहिए, तो डेफिनेटली हिट दैट अपग्रेड बटन सो दैट यू कैन इमीडिएटली डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो बोलते हैं यार व्हाई टू फिक्स इट इफ इट एंट ब्रोकन, I feel Windows 10 is way more sufficient. Windows 11 में कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. It is more visual appeal, even though it is a bit faster. But again, it all depends on your hardware. आप कितनी प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं, कितने एप्स रन कर रहे हैं. You know what I'm talking about. तो basically देखा जाए तो it's not a big, huge, giant leap from Windows 10 to Windows 11. But yes, the looks do change, the sounds do change, the error messages do change, the overall fit and feel आपको लगता है कि यार it's refreshed. अच्छा लगता है देख करके यार कुछ नया आ गया हमारे पास. So guys, this was the short and sweet video about Windows 11. I really hope आपको अच्छा लगा. Please put your comments down below. अगर कोई चीज़ मैं भूल गया बताने के लिए, do let me know so that I can address those issues in the upcoming videos. Also, like करना भूलना मत इस वीडियो को. Please share it to your friends. And also, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको पता ही है क्या करना है. Hit that subscribe button and please hit the notification bell on so that you can be notified whenever Mars Technical uploads a new video. This is Arpit Handa signing off. I'll see you very soon in the next episodes to come. Till then, take good care of yourself. Stay smart, stay technical, and always share your knowledge to others. Take good care of yourself. See you soon. Bye-bye.